Assalamu alaikum. This is Naseem, moderator for today's session, and I have three amazing guests with me. Uh, and today's topic is actually, today's discussion is actually about the uh, element that we talk about community building, that how entrepreneurs, while pursuing their dream, they can do a lot about building a community. So with respect to that, to uplift the society, community builders contribute a lot. Entrepreneurship is an important aspect um, for the revival of an economy. But in that process, if you are contributing towards the society, you are trying to solve some pressing issue of the society, that means you actually are doing a lot for the community. So here we have today three guests who are entrepreneurs, and during that process, they actually are contributing a lot towards building the community. And we'll start with Tanha. Tanha, would you please introduce yourself, what work you are doing, and how you are contributing towards building the community? Thank you so much, Sunil, for the opportunity. Thanks so much for being here. It's a great privilege to work with you guys because definitely a collaborative approach where both are the winning mindset की तरफ लेकर जाती है. And I'm very open, happy to collaborate with you guys. This is Talha. I'm the co-founder and founder at Rubitech and MSC60 right now. I'm also a chief technical officer at Grid, which is a venture of Wikipedia right now. And it's a great privilege to support the community in this struggling time, because इस टाइम जो है collaboration mindset बहुत ज़्यादा जरूरत है. अगर आप collaborative approach के साथ ही चलेंगे तो आप winning mindset के साथ और आप hustler नहीं बन पाएंगे. इस struggling position के अंदर जो है वो community building and networking, it's awareness everything. और मेरी अक्सर जो LinkedIn की जो post वो भी इसी पे build कर रही होती है कि networking is your network. आपको उसके साथ जाना होता है. बड़ी होपफुल कि हमारा एक जो वेंचर है जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल होगा. थैंक यू तनहा. एंड उसके बाद मजीद इंट्रोडक्शन और आपके वेंचर के बारे में हम इसके बाद बात करते हैं. हम एक दफा सबका एक राउंड इंट्रोडक्शन का. उस्मान, प्लीज आप अपने वेंचर के बारे में बताएंगे. श्योर. The name of the venture is Loading Champions. अब नाम पे बड़ा लोगों को शुरू में हुआ था कि क्या है, ये कोई लोडिंग कंपनी है, ये कोई सप्लाई चेन की कंपनी है. So that's when I decided कि इसका नाम ऐसा होना चाहिए कि it should look like a journey. So Loading Champions इस एम पे बनाया गया था कि अगर आपके पास एक लर्नर है या आपके पास कोई प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर है या कोई भी है, एनी पर्सन जिसको कोई भी किसी भी तरह की मेंटोरिंग की जरूरत है, तो आपको उसके लिए जो है आपके पास एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग होनी चाहिए. एक प्रॉपर पूरे जर्नी के थ्रू आपको गुजारना चाहिए ताकि आप पॉलिश होके when you get out of the other side of the tunnel, you're polished, you're prepared, you're ready. So that's how it was envisioned, and alhamdulillah, so far I've been able to use my best practices to my advantage, and we've been successfully placing candidates. We have been successfully mentoring people, and alhamdulillah, so far it's going really good. Okay. Thank you, Usman. Usman का venture बड़ा amazing लग रहा है कि he actually is helping people to upskill and from entering the market till perhaps becoming CEO is going to help people. अब हम अपने तीसरे गेस्ट की तरफ मूव करते हैं. हमारे साथ इस वक्त हैं खतीजा उस्मान, जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग बड़े अरसे से काम कर रही हैं. since I've known like couple of years back. तो बड़ा पॉजिटिवली मैं उनको देखती हूँ कि वो लगी रहती है मुसलसल. उनका डेडिकेशन जो है ना वो दैट एक्चुअली इज रियली इंस्पिरेशनल फॉर मी. और खतीजा, प्लीज आप बताएंगे अपने वेंचर के बारे में. थैंक यू नसीम फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन. मैं काफ़ी अरसे से जैसा होम रन बिजनेसेस के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी चला रही हूँ, और व्हाट लेड मी टू क्रिएट द कम्युनिटी वर माय ओन स्ट्रगल्स, बिकॉज एट एवरी स्टेप
I felt I needed a coach, a mentor, but I didn't have any guidance. और मैं बहुत ज़्यादा देखा कि मेरे तजुर्बात और 10-15 साल का एक्सपीरियंस उसने मुझे बहुत ज़्यादा डू नॉट सिखाए और क्या नहीं करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप पे. So I thought that a lot of women must be struggling from the same thing. They don't have to be in Pakistan, they can be in any part of the world. और जब मैंने सोचा कि वो भी ऐसी स्ट्रगल कर रही होंगी, तो फिर क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, वी शेयर ईच अदर्स चैलेंजेस, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट नेटवर्क से आपको फायदा होता है और आपको कम्युनिटी के थ्रू कनेक्शंस भी मिल जाते हैं. लाइक आई जिसको बिजनेस मैच मेकिंग कहेंगे, आई कनेक्टेड अ लॉट ऑफ entrepreneurs with each other कि जो मतलब स्किल शेयरिंग कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है in the beginning businesses do not have the funds to have huge teams. तो उस तरह बड़ा collaborative जैसे तला ने भी कहा कि collaborative mindset से जब वो चलते हैं तो बहुत फायदा होता है. तो दैट इज व्हाट कम्युनिटी इज ऑल अबाउट. और फिर अब हम जो कम्युनिटी स्टार्ट करने लगे हैं तो उसमें भी हमारा यही मकसद है. क्योंकि मैंने इतना ज्यादा विमेन के साथ काम किया तो आई रियलाइज दैट यू नो आई ऑलवेज से दैट एन इंक्लूसिव वर्ल्ड इज अ बेटर वर्ल्ड. देन व्हाई शुड आई बी एक्सक्लूसिव and focus just on women? Why not men? Why not the youth? So that is why we set out on this journey, and we hope to make a difference in entrepreneurs lives. और जो भी लोग struggle कर रहे हैं हमारी workforce में locally पाकिस्तान में, हम उनको कैसे facilitate कर सकते हैं. अपनी जो हम niches हैं उनको आपस में इकट्ठा लाके, जिस तरह उस्मान जो हैं वो टैलेंट एक्विजिशन, HR और मतलब पॉलिश और ग्रूम करने पे फोकस करते हैं. हाँ जी. और तला जो है उनके मार्केटिंग स्किल्स हैं, उसके अलावा वो मेंटरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बल्कि मेरी भी मेंटरिंग करती हैं. तो उस लिहाज से मेरा भी कोचिंग प्लेटफॉर्म है. तो इंशाल्लाह आप भी हमारी मेंबर बनेंगी. आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, सीजन्ड एजुकेशनिस्ट हैं. तो आई थिंक टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस एंड वी कैन ब्रिंग समथिंग पॉजिटिव टू आवर पीपल. ओके, अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन आप तीनों से है. आप तीनों कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अगर एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो मुझे नहीं पता कि आप तीनों मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेरी लाइफ को आप किस तरह से इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो अगर मैं आपके पास आती हूँ तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी टीम से, आपकी कोलैबोरेटिव एफर्ट से, कि मुझे तलहा से क्या मिल सकता है, मुझे खतीजा से क्या मिल सकता है, मुझे उस्मान से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, कि ये मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या मेरी लाइफ स्किल्स में किस तरह से ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो किस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे मेरी लाइफ को बेहतर करने के लिए? आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे ताकि आपकी एस्पिरेशंस और आपके गोल्स क्या है उसका पता होना चाहिए. अगर मैं और आप एक कॉमन गोल पे नहीं होंगे, हम एक कॉमन चीज अचीव करने पे नहीं जाएंगे, तो डाउन द लेन विल बी मोर लाइक दैट रेल रोड, जैसे रेल का ट्रैक होता है कि आपस में मिलता नहीं. तो हमने वो नहीं करना. सो फॉर अस, फॉर मी, इट विल बी टू टॉक टू यू, to understand what you want to do, to understand your aspirations, and then hold your hand to take you through that. That's what that's the kind of value I can add, and I can देखिए, entrepreneur बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि we are know-it-alls. हम भी struggle कर रहे हैं, हम भी उसी तरह inflation को fight कर रहे हैं, हम भी उसी तरह हालात को fight कर रहे हैं. But जो चीज मेरा ख्याल है हमें apart from all of us, which sets us apart, is the fact that we have a vision. We want to bring about this kind of a change. So I would want to be your success partner and then see how you achieve that success. That's what you're coming to Loading Champions for. How I get it, that success is not possible if there is no common denominator. That's true. So you try to find कुछ that. ऐड भी करना चाहूंगी कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की उस्मान ने कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो अब आप देखिए, एक आम बंदा
या an entrepreneur who has just started up cannot relate as much to, मतलब आप उसको Elon Musk, Bill Gates का Yes, example देंगे, yes. they cannot relate, they will idealize them. But to somebody who is struggling and who is on the journey themselves, they will learn more, they will relate more to them. So that's what I feel. And Thank you so maybe much. a person who has just started out, they may not be able to get what you are trying to make them learn. They would look at it कि ये बहुत ही कोई idealized version है that you are trying to, or maybe they find it really hard कि अच्छा इतना hard work करके मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा जो मेरा ड्रीम है या जो मैं जिसे सक्सेस समझता हूँ. तो उसमें जो रिलेट ना करने वाला एलिमेंट है, आई थिंक कि उसमें ये मेंटोर का या उस्मान का ये बहुत रोल होता होगा कि इसका ये जिनको जो इनके प्रोटेजी हैं वो इनको ट्रस्ट करें क्योंकि अगर ये हार्डशिप से गुजरना है तो ये यहाँ पर पहुंचना है, तो जहाँ पे उस्मान कह रहे हैं यहाँ पहुंचने के लिए ये रास्ता लेना पड़ेगा, तो दे विल हैव टू टेक दैट. पर्सनल एफर्ट्स तो डालनी पड़ेंगी. देखिए अब मैं कभी ये नहीं करता, और कई लोगों को शायद अजीब भी लगता हो, मुझे कोई कहे ना मेरा सीवी अपडेट कर दो, मैं उसको नहीं करके देता, मैं उसको कहता हूँ आप खुद करो, मैं रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ. जैसे देयर वाज दिस कैंडिडेट हु केम टू मी एंड शी वाज न्यू, अभी एक्सपीरियंस भी लेना था और उनकी सीवी ऑलरेडी 4 पेजेस की थी. Whereas as a new person, मैं 1 पेजर से ज्यादा एज अ रिक्रूटर अगर देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये this needs to be shortcut. I need to put in my productive hours on grooming this person. So उसमें ये है कि मैंने उसको टास्क दिया बच्चे को कि आप इसको खुद ठीक करोगे. मैंने उसको एक सैंपल सीवी दे दिया, मैंने कहा इस तरह कीवर्ड्स हाईलाइट करते हैं, इस तरह अच्छा बनाते हैं, स्पेसिंग ऐसे होती है, लेकिन करना आपने खुद है, ताकि इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट ग्राइंड फ्रॉम डे वन उनको आदत पड़ जाएगी. एंड आई थिंक हम भी समवॉट उस ग्राइंड से, जैसे हमारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स रहे, हम गुजरे नहीं. मेरी कस्टमर सर्विसेज की बिगिनिंग है, और आई एम श्योर यू हैव बीन डूइंग स्टफ लाइक दैट. खदीजा हैज बीन लाइक दैट. या सो आई थिंक बेसिकली yeah. मैं अभी बात करता हूँ. नहीं, that's totally यहाँ से बेसिकली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ. हम अगर बॉयलरप्लेट बना के दे देंगे कि यार दिस इज समथिंग यू कैन डू, हम करके दे दें, वो आगे एक्सेल नहीं कर पाता. ये सारा काम तो हम, सॉरी मैं थोड़ा सा बायस भी होंगे इस बात पे, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी ये करते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, ये आप ये पढ़ लें और ये आपको एग्जाम में आएगा और यही आपको आगे एक्सेल करवाएगा. गोल आपका लर्निंग नहीं था, गोल आपका ग्रेड पास करना होता है. उसी की वजह से हमें अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, सामान आपको भी आ रहे हैं कि हमें वो एक फाइनेंस रिसोर्स नहीं मिलता है कि कंपनी को वो इस वजह से नहीं मिल रहा है, जो ग्रेड्स को बहुत अच्छी लेते हैं, 4x4 लिया होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है. उसके पास R&D का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो उसको R&D के लिए तो उसके हाथ पांव को खोलने लग करते कि ये मुझे क्या कहती है, मैंने क्या करना है. मुझे तो एक बॉयलरप्लेट मिलती थी, मैं तो उसी को करके मैंने 4x4 लिया. तो दिस इज समथिंग यू नो टू क्रिएट एन इम्पैक्ट कि आपको हर चीज से करनी पड़ती है, कुछ आपको कोई करके नहीं देता. नो वन इज लायबल टू यू नो एंटरटेन यू. हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी एक खास लिमिट तक कर रहे हैं, हम एक विजन बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि अच्छा आपने इस पाथ पे चलना है, उस ट्रैक पे चलना है. This is something कि I guess हम सब इस पे एग्री कर रहे हैं. इस पे तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज हमें बॉन्ड जिस पे हमारा बना है ना, वो एक पैशन है. अगर आप में कोई चाहत ही एक्सेल करने की नहीं है तो फिर वहां दैट्स अ प्रॉब्लम. पैशन फॉर लर्निंग एंड एक्सेल, या वो थोड़ा सा आप में और थोड़ा सा हम डाल देंगे. And passion to serve also. yes. जब तक आपका पैशन टू सर्व अदर्स नहीं है तब फिर तक आप आपका community पैशन, build नहीं yes, कर you cannot build a community. That's absolutely true. और तलहा आप से जो मेरी डिस्कशन हुई है उसमें कुछ चीजें तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उनको खुद दोबारा हाईलाइट करें कि किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर्स को या स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, किस तरह से आप आईटी से रिलेटेड या अदर देन आईटी प्रोजेक्ट्स भी हैंड होल्डिंग करते हैं या गाइड करते हैं. बेसिकली मेरी जो कोशिश होती है, होपफुली वो ये होती है कि मैं 15 to 30 मिनट्स के ब्रैकेट के अंदर वीक के अंदर 1-2 डिस्कवरी कॉल्स लें, जो कि लोग हसलिंग पोजीशन में, जो कि सेम पोजीशन पे हम भी थे हैं, मतलब हर नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, वी आर आल्सो लर्निंग. तो अगर मैं किसी से डिस्कवरी कॉल ले रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं मैं उसको अपनी नॉलेज बता रहा हूँ, मैं उससे भी कुछ लर्न कर रहा हूँ. और वो हमारे लिए कि ना एक यू नो यहाँ पे आके लोग घबरा जाते हैं कि नहीं जी हमने नहीं बताना कि हम किस हसल से गुजरे हैं या हमारा बैकग्राउंड, जो हमें तो ये बताना कि वी आर जस्ट शाइनिंग. Struggles शेयर करना, vulnerability शेयर करना आसान नहीं होता, और क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता ना. मतलब अब हम बात करें कि मैंने खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, हमने बुरी चीजें करके अच्छी चीजों की तरफ आए हैं,
तो उस पोजीशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लोग कहते नहीं हमने तो वी जस्ट लर्न किया, माइंडसेट ऐसा था कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो दिस इज समथिंग कि मैं उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करता हूँ, कुछ अपने लिए कुछ कोशिश होती है उनको एजुकेट कर पाऊँ एट सम एक्सटेंट जहाँ पे कुछ इशू आ रहे होते हैं। और वही वाली बात कि मैं कंप्लीट कुछ करके नहीं देता, मैं बॉयलर प्लेट बता देता हूँ कि यार ये आप ये आपका इशू है। मतलब समथिंग लोग कभी बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ से पूछ रहे थे कि आप किस तरह से लीड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं सेल्स वाले पार्ट से, कुछ टेक्निकल पूछ रहे थे कि हम किस फ्रेमवर्क के साथ हैं। तो दिस समथिंग कि मैं उनको बता देता हूँ, बट नॉट जस्ट द सेम कि यार क्योंकि हमारे भी टाइम की एक वैल्यू होती है और मैं वो वैल्यू लेता नहीं हूँ, पेड ऑफर्स की तरफ नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे आई भी नहीं है लेकिन मैं वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो दिस इज समथिंग कि मैं वो जेडी नहीं है, मैं जो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो समथिंग फ्री फॉर एवरीवन। और वो उससे मेरी भी लर्निंग हो रही है और बाकी जो हमारे बेंचेस हैं जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। तो this is आपकी something- और उस्मान की दोनों की बात से मुझे एक चीज का ख्याल आ रहा है कि शायद आपके पास जो लोग आते हैं बड़े एंथुसियाज्म के साथ कि यू आर गोइंग टू हेल्प देम आउट, बट समहाउ दे आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। दे फील that if they are going to take any step that you are telling them, they may not be successful and they may be made fun of. तो मेरा ख्याल है कि एक वो रिलक्टेंस भी होती है, people don't want to take first step. बेसिकली तो वो स्टेप नहीं लेना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि वो स्टेप जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट कि उसका स्टेप कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं 100% जाता, पॉजिटिव आए। फर्स्ट स्टेप कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। इवन तो इफ यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप इन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी तो आपको जो है ना वो डू एंड डोंट्स को देख कर आना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा उर्दू का वर्ड है कि आपको सारी किश्तियां चलानी पड़ती हैं, आप उसके बाद भाग नहीं सकते। तो आप भाग देंगे तो फिर आप यू आर नॉट मेड फॉर द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, यू आर मेड फॉर द 9 to 5 कवर्ड जोन। तो फियर ऑफ मिसिंग आपको जो है वो जो आपके अंदर होना चाहिए कि यार आप मैं अगर ये कर रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है ये सही भी हो सकता है। जब तक आप उससे एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे आप कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं 100% सक्सेसफुल नहीं हो और सकते। एंटरप्रेन्योरशिप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है कि आप 96% जो वेंचर्स होते हैं, न्यू वेंचर्स होते हैं, दे फेल। या ठीक है, सो ओनली 4% एक्चुअली सक्सीड। इसका मतलब ये है कि ये इसमें तो लोगों को जब ये स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो उनको तो और ज्यादा फियर उनके मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। अच्छा ये तो उस्मान, अगर इस इन फियर्स के साथ कोई आपके पास आता है, वो पर्सनली ग्रो भी करना चाहता है लेकिन वो फियर्स भी हैं, फिर कुछ सोशल प्रेशर्स भी हैं, कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर भी वो इतना हम इन चीजों को इनकरेज नहीं करते अपने बच्चों को कि हम उन्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, लेकिन हर सक्सेस के पीछे थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स होते हैं। तो वो हम एक्सेप्ट करने के लिए एज अ सोसाइटी तैयार नहीं होते। और कुछ आप हमारा एक माइंड आपके लेकिन एक्चुअल मेकअप ऐसा है कि इसके अंदर ये इश्यूज हैं। तो अगर आपके पास एक इंडिविजुअल आता है उसको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं ना उसके मिथ्स थोड़े से बर्स्ट कर देता हूँ। वो इस तरीके से कि मैंने हमेशा मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, आप जितने मर्जी स्टैट्स ले आओ, ठीक है, स्टैट्स हेल्प यू टू एक्सेल, लेकिन सक्सेस, रिस्क एपेटाइट, ये सब कुछ बहुत सब्जेक्टिव है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता ही करता है। आपके लिए सक्सेस कुछ और होगा, आज शायद तला के लिए सक्सेस माइट बी डिफरेंट, मे बी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, Yes. माइट बी मॉनेटरी। फॉर मी सक्सेस मे बी टू सेंडिंग माय किड्स टू अ बेटर स्कूल। यस। तो मेरे लिए हर स्टेज का सक्सेस वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये पेंडेमिक आया तो मुझे कांस्टेंट फियर था कि माय किड्स आर गोइंग टू लूज आउट ऑन ऑल द सोशल इंटरेक्शन दे एवर मेड, सो दे आर गोना अनलर्न एवरीथिंग। तो उस टाइम सक्सेस फैक्टर ये था कि इनको वापस इंस्टीट्यूट में कैसे ले जाना है, इनको वापस उस लाइफ में कैसे डालना है। तो उस टाइम का वो हो गया। अच्छा, जब वो अचीव हो गया तो वो आ गया। दूसरा, रिस्क एपेटाइट। हर एक में एक रिस्क एपेटाइट होता है, कुछ में नहीं होता, जो कि मैं मानता हूं कि ये भी सब्जेक्टिव है, लेकिन ये वेरी करता है। यंग लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है। Yes. जैसे फॉर एग्जांपल With आपने age, देखा होगा yes. कि अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वो बाहर के मुल्क जाके भी रिस्क ले लेता है, वहां भी चाहे उसको एम्प्लॉयमेंट ना मिले, वो कुछ अर्सा स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ करके कर लेते। फॉर मी इट्स गोना बी डिफरेंट नाउ। आई हैव अ वाइफ, आई हैव किड्स, Family. आई हैव पेरेंट्स, जो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, लेकिन स्टिल एज अ मोरल और समथिंग वो तो मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, सब्जेक्टिव है, लेकिन मेरा सक्सेस एपेटाइट इज डिफरेंट। अब टू मी सक्सेस, वो जब पहले वाले सक्सेस फैक्टर्स मीट हो गए, अब नया सक्सेस फैक्टर है। अब भी एक सक्सेस फैक्टर आया कि अब मुझे इस वीडियो कास्ट पॉडकास्ट को भी सक्सेसफुल बनाना है, तो ये मेरा एक और फैक्टर ऑफ सक्सेस हो गया। सो दैट्स व्हाट आई ट्रीट माय कैंडिडेट्स हाउ के यार अभी अचीवमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो एचआर में हायर हो गया,
किसी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसकी जॉब भी लग गई। सो आपको जरा सब्जेक्टिवली लेके चलना पड़ता है। तो ये मिथ्स मैं थोड़े से उनके बस्ट कर देता हूँ जैसे वो मेरे साथ इन कांटेक्ट करते हैं। जो आप सक्सेस की बात करें ना, सब्जेक्टिव सक्सेस जिसको हम कहते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं है। जो किसी के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है, वो किसी भी चीज में हो सकती है, जरूरी नहीं है वो फाइनेंशियल या मॉनेटरी अचीवमेंट्स में है सिर्फ। और वो टाइम के साथ चेंज भी होती है, एज के साथ चेंज भी होती है। और आपने जो गोल आज सेट किया है वो हमेशा आपका वो गोल नहीं रहेगा, ठीक है। गोल्स भी इवन आपके चेंज होते रहते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं एक चीज आपकी जो इनर कॉलिंग होती है ना, वो आपको तंग करती रहती है। यू आर डूइंग समथिंग बट येट यू फील लाइक नहीं, ये इज नॉट कंपैटिबल विद माय दैट इनर कॉलिंग। यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दैट इनर कॉलिंग इज, बट समहाउ फील होता है कि कंपैटिबल नहीं है व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ एंड दैट इज नॉट कंपैटिबल विद दैट थिंग। सो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोचिंग जैसे खदीजा आप कर रही हैं, जैसे आप हैंड होल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप टैलेंट को पॉलिश करने की, एक्वायर करने, एक्विजिशन की पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, उसमें कोचेस दे हेल्प अ लॉट। लेकिन कई दफा लोगों के अंदर, जिसमें कहा एक कल्चर भी होता है, ठीक है। अब हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर डिफरेंट होगा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से। आप ये कह रहे हैं आपके ऊपर डिपेंडेबल्स नहीं है, लेकिन येट एक सोशल कल्चर आपके सराउंडिंग में क्या है, यू वुड बी डिस्करेज्ड बाय अदर पीपल अराउंड यू, ठीक है। क्योंकि वो दे आर मोर लाइकली के दे आर मोर लाइकली टू टेक लेस रिस्क इन लाइफ, सो दे वुड बी टेलिंग यू कि नहीं रिस्क मत लो, फेलियर होता है, फेलियर होता है, ठीक है। सो अब कुछ चीजें कल्चरल हैं। सो हम जिस कल्चर में ऑपरेट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप बात करती हैं, ठीक है, जो बैरियर्स शायद यहाँ की खवातीन फेस करती हैं, वो शायद किसी और सोसाइटी में और तरह के बैरियर्स होंगे उनके, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शायद बहुत ज्यादा एक कोचिंग के पर्सपेक्टिव में कि अच्छा हमारी जो एक जो जिनको हम सर्व करना चाह रहे हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनको हम कैसे लेके चल सकते हैं। सो जब आप उसकी सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे ना, सब्जेक्टिव सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे ज़हन में एक चीज आ रही थी कि जो फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं ना, हम मैस्लो की हायरार्की भी पढ़ते हैं कि ओके साइकोलॉजिकली हमारी तो फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आती हैं। एक सर्टेन लेवल ऑफ आपका फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है, उसके बाद आप जो है रिस्क टेकिंग करते हैं। सो हमारे कल्चर के अंदर आपको क्या लगता है कि वो जो एक फैक्टर है, जो आप ये समझते हैं कि ठीक है सब्जेक्टिव सक्सेस तो है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन है, मैंने उसको स्टेटिस्टिकली चेक तो नहीं किया, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बिकॉज एकेडमिशियन हूँ, पढ़ाती हूँ, यंग बच्चे होते हैं तो उनको मैं देखती हूँ, उनकी एस्पिरेशन फाइनेंशियल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो सक्सेस की बात की मैंने मेनी टाइम्स आई ट्राई टू मेजर दैट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव सक्सेस की बात करते हैं, सब्जेक्टिव सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एक्चुअली एस्पायरिंग टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि हम इस तरह के कल्चर में रह रहे हैं कि अच्छा जी फ्रीडम ही आपको तब मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आपको फ्रीडम मिलती है चॉइसेस लाइफ में करने की। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन कल्चरल कंस्ट्रेंट्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं एज कोच? अब तीनों के लिए, ये तीनों के लिए क्वेश्चन है क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप मेनली देखती थी और आप बाकी सब मतलब यूथ को भी देख रही हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने उन्हें कोच करना हो लाइफ स्किल्स पे या उनको, तो ये जो उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इनको आप कैसे हैंडल करती हैं? या उस्मान अगर टैलेंट पॉलिश करने की बात करते हैं और वो ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है एक स्पार्क तो होना चाहिए, वो हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस एज ए सोसाइटी थोड़ी सी कम है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एज अ कोच, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया हुआ है तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है, तो वो मैं देखना चाह रही हूँ आप उस चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं कि जो लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, जो उनके ऊपर प्रेशर्स हैं कि सक्सेस को उन्होंने एज फाइनेंशियल सक्सेस ही देखना है, ठीक है। तो ये एक प्रेशर होगा जब भी कोई आपके पास आएगा, उसकी यही ख्वाहिश होगी कि मैंने ये काम करना है और इसमें मुझे फाइनेंशियल बस फ्रीडम सक्सेस मिल जानी चाहिए। तो अगर ये एज कोच आपने किसको आता है तो क्या कैसे इसको आप हैंडल करेंगे? ये एक्चुअली नसीम बड़ा अच्छा सवाल है और थोड़ा सा मुश्किल भी तो अब देखें फाइनेंशियल प्रेशर्स आपने बिल्कुल सही कहा, बाहर भी होते हैं इधर भी होते हैं। हमारा यहाँ पे क्योंकि वी आर ऑफन इन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स और हमारे पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या डिपेंडेंट्स भी होते हैं, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रेशर जरूर ज्यादा होता है और इससे आप की बहुत लिमिटिंग बिलीव्स पैदा हो जाते हैं। अब जब कोचिंग आते हैं, मैं खुद तो पर्सनली कोचिंग नहीं प्रैक्टिस करती, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने भी कोचेस हैं मैं बड़ी क्लोजली उनके साथ काम करती रही हूँ, और वो लिमिटिंग बिलीव्स पे फिर इस तरह काम करते हैं कि एक तो आप मतलब आप बेसिकली कह रही है ना कि इंसान का पर्पस
भी आइडेंटिफाई हो, वो एक पर्पसफुल लाइफ भी रहे और अपनी इकोनॉमिक नीड्स को भी मीट कर सके, ये आप कह रही है ना? और मैं ये तो- कह रही हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव इनिशियली हम ऑब्जेक्टिव सक्सेस हम्म। क्योंकि मेरे साथ जो ग्रेजुएट हुआ था स्टूडेंट, वो कितना हाउ मच शी इज मेकिंग और शी इज मेकिंग, और मैं कहाँ पे फाइनेंशियली स्टैंड करता हूँ। जो सब्जेक्टिव सक्सेस की उस्मान से बात हाँ, कर रहे थे, हाँ, वो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी देर के बाद शायद आना शुरू होती है, कि जब आपकी वो जो बेसिक एक लेवल है, जब वो आप अचीव कर लेते हैं। और हमारा वो बेसिक लेवल, जैसे आपने कहा एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं आपके साथ, हाँ। डिपेंडेबल्स हैं आपके साथ, तो उसको अचीव करना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो ठीक हर है, किसी के सो लिए वाकई मेरा ये differently है। क्वेश्चन था कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट आता है, उसको आप सब्जेक्टिव सक्सेस हम उसको बात हाँ। करते हैं कि अच्छा नहीं जी, अकॉम्प्लिशमेंट करना भी तो एक सक्सेस है, आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, दो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट हाँ। in monetary terms, but yet you are having that satisfaction that you have done something for someone. ठीक है, लेकिन किसी को इनिशियल लेवल पे ये समझाना ये मुश्किल होगा, ये ये बहुत शायद एक मुश्किल है। सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ पे तो जाके वो बिल्कुल, समझ ले। बिल्कुल। ठीक है, सो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ। चूंकि इन एस्पिरेशन के साथ अगर एक यंग बंदा आपके पास, एक यंग बच्चा हाँ। आपके पास आता है, कोच आप उसे करना चाह रहे हैं, आप उसकी हैंड होल्डिंग करना चाह रहे हैं, और आपने शुरू में बात की कॉमन डिनोमिनेटर की कि वो बिल्कुल सही। एस्पिरेशन और वो आपकी मैच होनी हाँ। चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंज होगा ना कि अच्छा ठीक है, अब आपने एक चीज उसकी अनरियलिस्टिक है शायद, और आप हाँ। उसको उस लिमिटिंग बिलीफ से भी बाहर निकालना चाह रहे हो, ये भी चाह रहे हैं कि ये शायद इल्यूजरी है कि आपके बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या फेलियर्स के जो फियर है, ठीक है, उन सब ये चैलेंजेस है ना आपके एज कोच। तो हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है अच्छा, कि ओके इसमें हाउ थोड़ी यू सी गोना। हम फाइनेंशियल कोचिंग भी करते हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका एक फॉर्मूला एक्चुअली भी है। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करती हूँ। वो ऐसे है कि क्योंकि देखें, आपको ना शुरू में पता नहीं होता व्हाट एग्जैक्टली आर योर फाइनेंशियल नीड्स। अगर कोई समझे, कोई सबसे बड़ा बच्चा है या बेटा है घर का, और उस के ऊपर प्रेशर है कि उसने ना सबको संभालना है, तो वो इनिशियली बड़ा ओवरवेल्म हो जाएगा कि पता नहीं मेरे पे कितना प्रेशर है, ये वो। तो सबसे पहले तो ही हैज टू आइडेंटिफाई हाउ मच ही नीड्स टू मेक ऑन अ मंथली बेसिस, और उसको फिर उससे ना कैलकुलेट करके ईयरली बेसिस पे कितना, और मैं कितना मुझे मिल जाएगा तो मैं मतलब आई कैन लिव कंफर्टेबली। और फिर उसको हम ये लॉ ऑफ अबंडेंस और इसमें भी जाते हैं, विजन बोर्ड्स में भी जाते हैं, कि हम उनको बजाय कि वो इस चीज से इतने बॉग डाउन हो जाएं और ये समझें कि बस ये हमें बस बहुत प्रेशर आ गया, तो वी वर्क विद देम इन दिस वे कि वी ट्राई टू वर्क इट आउट विद देम कि व्हाट डू दे रियली नीड। क्योंकि जब एक दफा नीड्स आइडेंटिफाई हो जाती है ना, फिर नेक्स्ट स्टेप इजियर हो जाता है। और फिर वो आप एक थॉट आपके दिमाग में आती है, आप उसको विजुअलाइज करना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप वो ये तो थोड़ा फिल्मी डायलॉग हो जाएगा कि द यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग टू हेल्प यू अचीव दैट। बट आई एक्चुअली बिलीव इन दैट। हाँ, आई बिलीव दैट टू, एंड मतलब वी as a coaching platform we very much believe in this thing कि मतलब है आपने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और आपने विजुअलाइज करना है और आपने अपनी नीड समझनी है। जब आपको क्लैरिटी बड़ी जरूरी है नसीम, क्लैरिटी मैं समझती हूँ is the most important thing and most people don't have it. Yes, they are not yes. clear And on, that is my question that okay, if they हाँ, lack in that clarity, तो हाँ, अब आप कैसे हेल्प करेंगे? हाँ, वो आपको बाय नहीं करेगा। गोल सेटिंग कि उनके पहले आइडेंटिफाई करनी है नीड्स, फिर उसके मुताबिक गोल सेटिंग करनी है, छोटे छोटे गोल्स लेके, क्योंकि इनिशियली वो डॉन्टिंग इतना हो जाता है और लगता है कि पता नहीं क्या हर्क्यूलियन टास्क है। वो जो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे गोल से, ऐसे ऐसा यू विल गेट देयर, इट्स अ प्रोसेस, दैट इज हाउ इट गोज। और क्या कहते हैं ऐसे आप अगर हमेशा प्रेशर में रहेंगे, क्लैरिटी नहीं करेंगे, गोल सेटिंग नहीं करेंगे, देन यू विल नेवर बी एट अ प्लेस टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी ओवरवेल्म्ड कि ये प्रेशर है मुझ पे और इस तरह चलना है हमने लेके। और तला से भी जैसे मैं आपका ये क्वेश्चन, तो मैं सॉरी इसको थोड़ा आगे लेके चल रहा हूँ। जैसे आपने बताया था कि आपकी नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, तो नीड्स अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, आप एक फियर लेके चलने की, अच्छा मैं ये वेंचर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे अगर ये लॉस होता है तो मेरे यूनिक सब कैलकुलेटेड आपके पास एक अमाउंट होती है जो आपने रखी होती है, एक खास बजटिंग करके आप चल रहे होते हैं सब। अगर आप वो नहीं है, आपका बजट नहीं है कि अगर अच्छा ये अगर आपके पैसे ये लेट्स से स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई and work as a consultant with different organizations। और आप साइड हसल कोई ऐसी मॉनेटरी साइड हसल चलाएं जिसमें भी लोग आजकल ई कॉमर्स में वो काम कर रहे हैं। अब उसके अंदर ये होता है कि आप इंस्टेंट रिजल्ट आपको आ रहा होता है, लेकिन जो ये
प्लेटफॉर्म्स होते हैं या डिफरेंट कोई वेंचर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म वो लॉन्ग टर्म प्लान मांगते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स मांगते हैं। इवन तो क्या यू आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल एज अ बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप, या आप जो है वो कोई एंजल इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, आपकी केपीआई होते हैं वो आपने मीट करने के अंदर। लेकिन अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, जैसे फूड, अकोमोडेशन, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, अगर आप ये पूरी नहीं हो रही है, आप किसी नए जो है वेंचर की तरफ जाना चाह रहे हैं जिसमें, और आप वो फियर के साथ भी लेके चले, तो सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि फियर के साथ सक्सेस नहीं आती। बिल्कुल सही। ठीक है। सो एज कोच आपको ये होता है और इसको आपको बस्ट करना पड़ता है, इस फियर को भी आपको निकालना पड़ता है थोड़ा सा मैं आपकी ऐसे। पूरी कन्वर्सेशन को समराइज करता हूँ सब्जेक्टिव सक्सेस वाली बात को वापस लेके। देखें, मैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स में बिलीव करता हूँ जब मेरे पास कोई ना कोई आता है। तो कांस्टेंट एक फाइनेंशियल नीड फुलफिलमेंट तो एक कांस्टेंट है। हम एक वेलफेयर स्टेट में नहीं रहते अनफॉर्चुनेटली, के गवर्नमेंट के पास हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एजुकेशन फी, और हमारे लिए एजुकेशन भी लग्जरी में ही आती है। ठीक है, तो उस लग्जरीज को अफोर्ड करने के लिए कांस्टेंट आपको पैसे तो चाहिए। अब जैसे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और मुझे 2008 में पहली जो पे ऑफर हुई थी दैट वाज 19,000 और तब मुझे पॉकेट मनी 2500 मिलती थी, तो मुझे लगता था कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ, किसी की सोच है। And the first thing I did ever was to buy myself alone a large pizza. So that was my first gift to myself. तो constants का तो देखें वो तो अचीव करने हैं। अगर आपने फाइनली ये चीज इनबिल्ट है। अगर आप देखें तो जैसे फ्रॉम द स्टोन एज अगर आप चलें तो बंदा हैज बीन हंटिंग एंड फीमेल हैज बीन हेल्पिंग हिम to take care of the home. अब ये कि females are stepping out, mashallah, they are more successful, they are more aware, like Khadija, like you. So they are more aware, they are adding value to that. But the point was कि ये एक साथ है जो शुरू से चलता रहा है, और एक सोसाइटी में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स शुरू में चलते रहे। लेकिन एक जो इनबिल्ट चीज है वो तो आपने अचीव करनी, भूख आपने अपनी मिटानी ही मिटानी, तो उसके लिए आपको अर्न करना है। जो मेरी सब्जेक्टिव सक्सेस वाली बात ये थी कि किस हद तक, फॉर एग्जाम्पल एक एजेंट है जिसने स्टार्ट किया है कस्टमर सर्विसेज से, अगर वो 7, 8, 10 साल बाद भी उसी कुर्सी पे बैठा हुआ है तो दैट्स समथिंग नॉट ऑन। लेकिन अगर उसको थोड़े सालों बाद या व्हाटएवर जब उसको कन्वीनियंट लगे उसमें चेंज की और एक्सेल करने की एक चाहत आती है जिसपे वो अपने आप को एक्सेल करता है, तो दैट्स द एपेटाइट वन शुड हैव। सो आई फॉर दैट मैटर हेल्प टू रीगेन दैट एपेटाइट and also find ways out of it. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इन द टैलेंट एक्विजिशन फील्ड एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मुझे करियर मैप्स थोड़े से माइंड में बना लेता हूं मैं। तो मुझसे उस दिन एक बंदे ने पूछा कि मैं क्या करूं ये वो, तो आई टोल्ड हिम कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड गो फॉर दिस। तो अब हमने उसका करियर उस तरफ बनाना शुरू कर दिया। सो एक पैरेलल करियर उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज लर्निंग कोडिंग इन द मॉर्निंग बट शाम को कस्टमर सर्विसेज में था, बट उसको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही। सो आई टोल्ड देम तुम कोडिंग कर लो और इवनिंग में हम तुम्हारे लिए टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जॉब ढूंढते हैं ताकि तुम दोनों करियर्स को मैच कर सको। सो दैट इज द काइंड ऑफ हमें मेरे केस में और हम सबके केस में वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हमें हर दफा हर बंदे के लिए स्ट्रेटजी ऑल्टर करनी है, बड़ा कस्टमाइज्ड तरीके से बिल्कुल हमें कस्टमाइज करना है। दैट इज वेयर वी ऐड वैल्यू ना, दैट इज, वरना तो हम भी वही फर्म्स बन जाएंगे ना। देखिए वी वांट मॉनेटरी बेनिफिट्स, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप में मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं आए, लेकिन एक सक्सेस विजन लेकर आए हैं और एक ऐसा विजन लेके आए जो शायद हमने हासिल नहीं किया, जो शायद हमें नहीं मिला। जो हैंड होल्डिंग शायद मुझे मिल जाती टाइम पे तो आज मेरा करियर शायद और तरह होता। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। एंड लेकिन अगर वो होता जैसे खदीजा है, आई थिंक इन केस तला के केस में, कि अगर कोचिंग मिल जाती टाइम पे, या एज अ फीमेल खदीजा को शुरू में बता दिया जाता है कि आप कितनी एम्पावर्ड हैं, आप में कितना टैलेंट है, तो शायद आज शायद ये 2 स्टेप्स फर्दर होती। तो वो जो आज लेकिन हम 3 कोचिज से महरूम होते हैं। लेकिन ये है कि तो हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ऑलवेज। उसमें जब तक राइट, सो जब तक आप किसी स्ट्रगल से गुजरते नहीं है ना, तब तक आपको वो आपके अंदर वो चीज नहीं आती कि अच्छा मुझे किस तरह से, और वो फिर एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आता है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि आप शायद खुद अगर आप एक फुलफिलमेंट पे चले जाते या मैक्सिमम दैट यू कुड हैव अचीव्ड, आप वो अचीव कर लेते, तो शायद आज आप कम्युनिटी वर्क का ना सोच रहे होते। आज आप ये ना सोच रहे होते कि ओके मुझे कोई हैंड होल्डिंग करता तो मैं कहाँ पे जाता। सो यू एक्चुअली आर होल्डिंग सो मेनी हैंड्स नाउ,
ठीक है, सो एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ शायद वो ना हो पाता। तो ये आपकी जो आपका ख्याल है कि अभी आप पीछे हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा शायद बेनिफिट है सोसाइटी का, और बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है दैट यू गाइस आर गोइंग टू क्रिएट। Hopefully, inshallah. That's the aim. Okay, so anything that you want to contribute? I think I have asked all the questions that now a layman can understand that how you can contribute to their, you know. हाँ जी, बस ये थोड़ा सा ऐड करेंगे कि इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद आवर लाइव सेशंस, जिसमें हम वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, अल्टरनेटिवली करेंगे, और फिर वी डू प्लान ऑन मीटअप्स, नेटवर्किंग मीटअप्स एज वेल, सो यू नो वी गिव अ चांस टू पीपल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, फॉर्म मीनिंगफुल कनेक्शंस, और कम्युनिटी ऐसे ही बिल्ड होती है ना जब इंटरेक्शंस, खास तौर पे पेंडेमिक के बाद हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत फील होती है ह्यूमन टच की और इन पर्सन मीटअप्स की। तो इंशाल्लाह उस पे हम आगे काम सोशल इंटरेक्शंस भी एक बेसिक इंशाल्लाह। नीड है। बल्कि हमारा एक और एक डिस्कशन चल रही है, अगर तो वो हमारी फुलफिल हो जाती है तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पिंग हैंड के तौर पर जो है ना हमारी ये नीड्स को, हमारे अंदर की हमारी अपनी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा वो एक्सेल करेगी इंशाल्लाह। बस फाइनल थॉट्स यही है, सॉरी फॉर बीइंग द मोस्ट टॉकेटिव वन, बट फाइनल थॉट्स यही है कि ऑब्वियसली ये हमने बड़े थॉट से, बड़े आउट ऑफ अ लॉट ऑफ लव वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग these लाइव सेशंस, और अभी आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ रूम टू लर्न एंड वी आर नॉट स्केयर्ड। हम बिल्कुल नहीं इस चीज में कर रहे कि जी वी आर ओहो हमें तो सब आना चाहिए था, ये तो बड़ा परफेक्ट जाना चाहिए था, ये तो बड़ा परफेक्ट स्ट्रीम होना चाहिए था। सो वी आर लर्निंग, हाँ हम भी लर्न करेंगे, आप हमारे साथ लर्न करें, पीपल लर्न विद अस, एंड वी जस्ट बस एक रिपल इफेक्ट अगर हमने बना दिया ना, तो आई थिंक विल बी सेटिस्फाइड कि हमने अपना सोसाइटी में काम कर दिया। बिल्कुल, और ये तो खैर मैं गारंटी देती हूँ कि पीपल आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइस। मेरे 2 घंटे के सेशन के अंदर आई हैव लर्नड अ लॉट। खदीजा से जब इंटरेक्शन होता है ना, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो नो, थैंक यू इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह हम होपफुली you. और सेशंस हमारे होंगे फ्यूचर में। इंशाल्लाह। तो और आई होप we are crossing our fingers that you actually are going to create that ripple effect that you aspire to, inshallah. Inshallah. That's the plan. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. Allah Hafiz.